Hello my dear students, good evening. Today we are going to discuss Young's double slit experiment ka derivation, which is must for boards. So let's start. This experiment was conducted by Thomas Youngs. What he did, he took one monochromatic source. What do you mean by monochromatic source? Which gives out only single wavelength रेडिएशन. ओके, जब ये रेडिएशन एक स्लिट एस से पास करवाई गई तो वी गॉट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स. ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स को फर्दर टू स्लिट्स S1 एंड S2 से पास करवाया गया. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज S1 एंड S2? दे वर वेरी नियर टू ईच अदर एंड दे वर इक्वली डिस्टेंस्ड फ्रॉम द मेन slit S. When this wavefront passed through S1 and S2, that got divided into two further wavefronts, and finally when these wavefronts reached up to the screen, we got a pattern was such that of bright dark fringes, bright fringes, dark fringes. That pattern is called interference pattern, and the fringes we got are interference fringes. If two waves are of same phase difference and they superimpose over each other on the screen, then we get bright fringes. And if the two waves coming from S1 and S2 superimpose over each other but in destructive manner, then they give rise to the dark fringe. This is our main concept behind this derivation. Okay, so let's start. बच्चों, स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल डी बोलते हैं. छोटी दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल डी. ओके, S1 एंड S2 से एक ही टाइम पे दो वेव्स निकली और वो O पे आके सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या रहा होगा? S2O minus S1O, that is equal to 0. There is no phase difference between the two waves, so we are getting bright fringe here. अब मैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी एक पॉइंट P ले लेती हूँ जहाँ पर कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है, राइट? और ये जो डिस्टेंस है मैं X ले लेती हूँ. फाइन. अच्छा, S1 से एक वेव आ रही है, P पे सुपर इम्पोज हो रही है. एट द सेम टाइम S2 से एक वेव आ रही है, वो P पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रही है. S1 से लेकर स्क्रीन पे मैं यहाँ पर ले रही हूँ पॉइंट R, और S2 से एकदम सामने में डिस्टेंस पॉइंट ले रही हूँ R डैश. Why I am taking it? I am going to solve this now. Okay, so now in triangle S1RP, we are going to use Pythagoras theorem here. S1R whole square plus PR whole square is equal to S1P whole square. What is S1R? That is the capital D. What is PR? That is X minus D by 2. How D by 2? This is D. Exactly इसके opposite O point है जो कि D को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, D by 2, and I want to calculate PR. So this total is X, उसमें से D by 2 माइनस कर देंगे. So this is X minus D by 2 का whole square, and this is S1P का whole square. This is equation 1. Okay, so now I am taking triangle S2R dash P. S2R dash का होल स्क्वायर प्लस R dash P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2P का होल स्क्वायर. व्हाट डू यू मीन बाय S2R dash? दैट इज D. व्हाट इज R dash P? X plus D by 2 is equal to S2P whole square. This is my equation number 2. Now subtract 2 minus 1. बच्चों, 2 में से 1 को subtract करोगे, D square X plus D by 2 का whole square minus D square minus X minus D by 2 का whole square, that is S2P square minus S1P square. Okay, so here D square and D square will cancel out. When you open both these brackets and you cut at the end, you will get 2xD, that is S2P square minus S1P square. You take this as A square minus B square, which can be written as A minus B and A plus B. So बच्चों, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगी S2P
minus S1P and S2P plus S1P. Finally, what I'll do, this S2P and S1P, I will bring it down. 2xd divided by S2P plus S1P is equal to S2P minus S1P. Can you tell me what is it? This is the path difference between the two waves coming from S2P and S1P. Okay, बच्चों, S2P and S1P. Talking about this, P point practically is very near to O. This is our O. Okay, P point is very near to O. So practically, what I'll say that S2P is nearly equal to S1P. So I can take both as D. So इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ 2xd अपॉन 2d. ओके, सो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया एंड आई गॉट द पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P. So finally बच्चों, during derivation we got this result and at the same time I want to share with you at P point I had assumed that P is a bright fringe. So bright fringe की condition क्या होती है? That is constructive interference and उसका condition हम लोगों को पता है, that is n lambda. ओके, सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, एन लेमडा इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी. सो वी कैन कैलकुलेट एक्स here. X is equal to n lambda d upon small d. What is x actually? Actually x is the distance between the central maximum to the bright fringe at any point we get. ओके, स्क्रीन पे कहीं पे कोई भी ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती है तो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट. अगर आपको nth ब्राइट फ्रिंज, कोई भी ब्राइट फ्रिंज का नंबर दिया जाए और फाइंड बोला जाए कि आप ढूंढिए कि कितने डिस्टेंस पे ये सेंट्रल पॉइंट से दूर है, तो यू कैन पुट सिंपली वेवलेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. ओके बच्चों, डिस्टेंस हमने अभी ढूंढा है कि nth ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल पॉइंट O से जो डिस्टेंस है दैट इज n लैम्डा d बाई डी. तो अगर मुझे n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज का देखना हो तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली दैट विल बी xn1 प्लस 1, दैट n की जगह पे n प्लस 1 लैम्डा d बाई डी. ओके, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन n प्लस 1th माइनस xnth ब्राइट फ्रिंज? तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, डिफरेंस निकालेंगे, माइनस n लैम्डा d बाई डी एंड वट आई विल गेट, आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर लैम्डा d बाई स्मॉल d. और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डिस्टेंस आया है दिस विल बी ट्रू फॉर द डार्क फ्रिंज ऑल्सो. ओके बच्चों, ये हमने इनकी ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्क्रीन वो हमने ढूंढ ली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रिंजेस विच वी आर गेटिंग ऑन द स्क्रीन. अगर मैं ये मानती हूँ कि दो वेव्स हैं, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या होगी? दैट विल बी IR is equal to I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos phi. And what do you mean by phi? Phi is the phase difference between the two interfering waves. अगर दोनों waves की इंटेंसिटी सेम है, मतलब कि I1 is equal to I2 is equal to I0, तो हमारा IR बच्चों क्या बनेगा? आप I0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका आंसर होगा 4I0 cos स्क्वायर phi by 2. इसका एक अलग से डेरिवेशन है which you guys have done in 11th standard also. So I am directly writing down the result here. And कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि phi इज इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए. तो हमारा जो IR है फॉर द ब्राइट फ्रिंज क्या बन जाएगा? 4I0. ओके, और यही चीज अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करनी है तो हमें पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें क्या मिलता है? डार्क फ्रिंज. तो डार्क फ्रिंज के लिए phi की कंडीशन क्या होती है? 2n प्लस 1 इंटू पाई. तो यहाँ पर हमारे IR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सो मतलब हमारी जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो बिल्कुल जेट ब्लैक होंगी और जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो बिल्कुल ब्राइट होंगी, और सारी ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी 4I0 और जितनी डार्क फ्रिंजेस होंगी उनकी इंटेंसिटी होगी 0. सो दिस वाज द YDSC एक्सपेरिमेंट.